Hello friends. So I am back with my new lecture after a long time. So because I was busy in some personal work of mine. So after around 2 months, I was busy. So after around 2 months, I'll be again started making new lectures on judge and continuing my GS main series. So this time I made a lecture on the reforms in coal sector, and in the last lectures we have already seen the reforms required in the power sector. So continuing with the same uh, trend or the same topic, it is very pertinent to you to understand the reforms which our central government has been doing in the coal sector. What are the reforms? You need to understand the background. What are the reforms till now which have been done in coal sector? And this year also, 2020, government has brought out a amendment bill, and the and include some updated some new provisions, updated the old provisions in the MMD DR Act, which is Minerals and Mines Development and Regulation Act. And that act has been amended, and a new amendment act has been passed by the parliament. So you need to understand the amendment which has been done, what are the issues, what are the advantages, disadvantages, and issues which are there in the act. So you need to after understanding all these things, you will be any question which comes in the call sector, you will be you feel confident to attempt the question related to the coal sector. So I'll be starting with the coal sector background and the reforms which has been done. So some introduction to the coal sector, that you should remember that we are the second largest producer of coal in the world, and we have the fourth largest reserves of coal. So we have the fourth largest coal reserves in the world, but we are this and we are the second largest producer of coal. Okay, so but in spite of that, India is the second largest importer of coal also. In spite that India is producing coal in a huge quantity, in spite of that, India is the second largest importer of coal, despite having the world's fourth largest coal reserves and being the second largest producer, because we choose monopoly that is incapable of domestic demand. So because we are not able to fulfill our domestic demand, that is why we have to import coal in huge quantity, because presently, not presently, but some years before, it was a highly monopolistic sector by Coal India Limited. And Coal India Limited, due to some inefficiencies and some some issues in administrative mechanisms and clearances in mining the coal, you can say delay in clearances in mining of coal, we are not able to meet our demand, domestic demand. So we need to import the coal. So that is the reason. We will study the reasons in detail in the next slide. So in this time, it is important for you to understand or to remember that coal sector was nationalized in 1973. So nationalized means all the mines, the mining mines, which the resources. So that is nationalized means all the resources now belong to government of India, which means that domestic coal could be mined, and it can only be mined by the public sector company, by the government companies, not by the private sector. 73 में ये हो गया था. But 1991 के बाद, post liberalization, in 1993 actually, the government decided to allocate coal mines to various players.
तो 1991 में इसको थोड़ा ओपन किया और कैप्टिव कंजम्पशन के लिए इसे खोल दिया। कैप्टिव कंजम्पशन क्या है कि आप माइन तो करेंगे कोल, बट आप खुद के यूज के लिए करेंगे। यू कैन नॉट सेल द कोल टू अदर पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल, कोई आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है, वो कोल को माइन कर सकती है क्योंकि उसको खुद के लिए यूज कर सकती है। वो कोल, वो क्या करेगी कोल का यूज? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। But it cannot sell coal to the third parties or to the other parties. So captive consumption means coal is taken by a company for its use and cannot sell it in the market. तो कैप्टिव कंजम्पशन के लिए कोल खोल दिया गया, जो कि पहले पब्लिक सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया, बट ओनली फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। ओके, तो इसके बारे में और डिटेल अभी पढ़ते हैं, बट सम इश्यूज विद द कोल सेक्टर यू शुड रिमेंबर। अगर क्वेश्चन आता है तो आप थोड़े बहुत पॉइंट वहाँ पे लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं, बहुत डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। ऑब्सोलीट माइनिंग टेक्नोलॉजी, वाई? मैंने आपको बताया कोल इंडिया लिमिटेड जो है उसकी मोनोपोली है और दैट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। तो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है उसके पास, तो ऑब्सोलीट माइनिंग टेक्नोलॉजी वजह से कोल का प्रोडक्शन कम है हमारे देश में। मोनोपोली ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, जो मैंने आपको बताया, ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर टिल 1993 एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन कमर्शियल माइनिंग टिल 2018। ठीक है ना। कैप्टिव कंजम्पशन के लिए 1991 में खोल दिया गया, लेकिन केवल अपने यूज के लिए, और ये रेस्ट्रिक्शन 2018 में खत्म हुई है कमर्शियल माइनिंग की। तो हम आगे बात करेंगे इसकी। डिमांड सप्लाई गैप, जैसे मैंने बताया, प्रोसीजरल डिले इन इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मल्टीपल लॉज, रेस्ट्रिक्टिव रूल्स, इफेक्टिव एंट्री ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इन द कोल सेक्टर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप यू कैन कोट इन द एग्जाम, सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन। व्हाट आर द रिफॉर्म्स इन कोल सेक्टर जो हमारी गवर्नमेंट ने किए हैं 2014 के बाद? एक तो कोल माइंस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2015 बना है। सो इट अनेबल्ड एलोकेशन ऑफ कोल माइंस थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑक्शंस। ठीक है ना। तो आप जानते ही हैं कोल स्कैम, कोलगेट स्कैम जो आपने सुना है। सो कोलगेट स्कैम इज व्हाट? तो इस स्कैम में बेसिकली क्या हुआ कि ये कंपनियों को एलोकेशन हुआ कोल ब्लॉक्स का, तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, यानी कि वो ऑक्शन बेस्ड नहीं हुआ था, वो कुछ FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे हुआ था। तो उसमें बहुत फेवरेटिज्म हुआ और बहुत सारा करप्शन हुआ, तो जिसकी वजह से 2015 में गवर्नमेंट लेकर आई ट्रांसपेरेंट ऑक्शन पॉलिसी टू एलोकेट कोल माइंस टू द प्राइवेट पार्टीज। एंट्री ऑफ प्राइवेट फर्म्स इन कमर्शियल कोल माइनिंग इज परमिटेड इन 2018 इन द कंट्री। सो 2018 में कमर्शियली फॉर कमर्शियल एक्सप्लोटेशन ऑफ कोल, तो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कोल का 2018 में एंट्री अलाउ की गई, पहले केवल कैप्टिव कंजम्पशन था। In April 2018, the Ministry of Coal has launched Uttam. So there is a Uttam, which is an app. This app is for coal quality monitoring. What is the full form of Uttam? That is unlocking transparency by third-party assessment of mined coal. So no need to learn each and every point or remember each and every point. तो आप कुछ पॉइंट्स इसमें से याद रख सकते हैं, जो याद रहेंगे आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ऑल्सो डेवलप्ड ऑनलाइन, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता चलूंगा, द पॉइंट्स विच आर इम्पोर्टेंट एज फार एज योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई विल बी reiterating those points in my lecture and will definitely pinpoint that these points are important for your exam. So you should note down those points and should remember and learn those points. So Ministry of Coal also developed, so this slide is not that much important, but you should remember, you can remember, you should have a note of these points, and it is better that you remember as more points as possible. So Ministry of Coal also developed online coal clearances system to provide a single window access to its investors to submit online applications for all the permission clearances related to the allocation of approvals for allocation of mining, the mines and the mining of the minerals.
Then the coal allocation monitoring system was also developed to monitor the allocation of coal by CIL to states, states to state nominated agencies, and state nominated agencies to such consumers in a transparent manner. So कोल एलोकेशन जो हो रहा है वो CIL स्टेट्स को कर रहा है, अगर स्टेट्स औरों को कर रहे हैं, तो ये पूरा जो एलोकेशन ऑफ कोल है इसके लिए एक इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया. तो उस सिस्टम के माध्यम से यू कैन व्यू और यू कैन सी द स्टेटस ऑफ द coal allocation or the mines allocation of the mines. What is the status of mines, to which department it is currently pending, and who is holding that mine, uh, not mine but the coal. So coal allocation जो हुआ है उसका monitoring करने के लिए, despite several private sector participation in a restricted manner, state run Coal India Limited continue to dominate the market. ठीक है ना. ड्यूरिंग द हाई ग्रोथ रेट, अभी कम हो जाएगा धीरे धीरे, बट अभी तक एटलीस्ट अगर हम बोलेंगे तो कोल इंडिया लिमिटेड इज स्टिल डोमिनेटिंग द मार्केट. ड्यूरिंग द हाई ग्रोथ ईयर्स ऑफ 2000s, द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ कोल कुड नॉट बी फुलफिल्ड बाय द स्टेट रन कोल इंडिया लिमिटेड, लीडिंग टू हायर डिमांड सप्लाई गैप. व्हाट आर दी अदर रिफॉर्म्स? और कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं इस सेक्टर में. The Coal Ministry has simplified the process of the mining plan approval process from 90 to 30 days. So whatever, if any agency wants to, have the want to get the license for prospective coal mining, so the clearance approval process is reduced from 90 to 30 days. In previous auctions, only end users of coal, such as companies in the, जैसे मैंने बोला, captive वगैरह के कंजम्पशन के लिए था, जो कि अभी हटा दिया गया है. दिस रिस्ट्रिक्शन हैज बीन डन अवे विद. ऑल्सो द लॉ अर्लियर एक्सक्लूडेड ए कंपनीज विदाउट माइनिंग ऑपरेशंस. द कंपनीज हु डू नॉट हैव एक्सपीरियंस इन माइनिंग ऑपरेशंस, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द ऑक्शंस. ये भी हटा दिया गया. दिस बार हैज बीन डन अवे विद, paving the way for local and foreign mining majors and non-mining ones too to participate in the domestic coal sector. One more point that is very important: the government has introduced a more equitable system of sharing revenues. So sharing revenues means whatever revenue is being earned by the private company, so the some part of the revenue has to be shared with the government. So this sharing system, equitable system of sharing has been introduced, and which has been removed. So moving away from so the government has introduced a मोर इक्विटेबल सिस्टम ऑफ शेयरिंग रेवेन्यूज. सो अभी तक क्या है, फिक्स रेट ऑफ रेवेन्यू है कि आप कमा रहे हैं तो भी उतना ही देंगे, नहीं कमा रहे हैं तो भी उतना ही देंगे. अभी एड वलोरम सिस्टम हो गया है, जिसमें क्या है कि अगर आपकी प्रॉफिट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा शेयर करेंगे, कम प्रॉफिट है तो कम शेयर करेंगे. अभी फिक्स था जो कि चेंज हो गया है. सो व्हेन द प्राइसेस गो अप, दे माइनस शेयर्स मोर विद द गवर्नमेंट, एंड इफ दे डिक्रीज, ही शेयर्स लेस. नाउ हु ग्रांट्स परमिशन फॉर माइनिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट. ये थोड़ा सा आप डिटेल में जा रहे हैं. द स्टेट, अब मैं आपको बता दूं, द स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स परमिशन फॉर माइनिंग नोन एज मिनरल कंसेशन, दैट इज कॉल्ड मिनरल कंसेशंस, फॉर ऑल द मिनरल्स लोकेटेड विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट अंडर द प्रोविजंस ऑफ MMDR एक्ट एंड मिनरल कंसेशन रूल्स. तो परमिशन माइनिंग की स्टेट गवर्नमेंट से लेनी होती है. हाउएवर, फॉर मिनरल्स स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द MMDR एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल इज नेसेसरी बिफोर ग्रांटिंग द मिनरल कंसेशन. तो अगर जो मिनरल स्पेसिफाइड है MMDR के फर्स्ट शेड्यूल में, अगर उनको माइन करना है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट परमिशन ग्रांट करेगी. तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एडिशनल अप्रूवल चाहिए. ऐसे कौन से मिनरल्स हैं? सो ठीक है. However, for minerals specified in the first schedule to the mines and minerals MMDR Act, सो इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल नेसेसरी है. और वो कौन से मिनरल्स हैं? दैट इज द हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज द कोल. जैसे मैंने कोल की बात की, सो हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो ऐसे जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, ऑल फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज. एटॉमिक मिनरल्स, एटॉमिक आपको पता है, जिंक, सॉरी दिस वन, ये रेडियम, देन यूरेनियम, देन थोरियम, and metallic minerals such as iron, bauxite, lead, zinc, gold. So minerals which are specified under the first schedule, इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल नेसेसरी होगी, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देगी. लेकिन
रिसेंटली पार्लियामेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है, यानी कि इसको अमेंड किया है एमएमडीआर एक्ट को, टू रिमूव एंड यूज रेस्ट्रिक्शंस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन कोल माइन ऑक्शंस एंड ओपन द कोल सेक्टर फुली फॉर commercial mining for all domestic and global companies. So the coal sector has been opened fully for commercial mining for all domestic and global companies. Thus the MMDR, that is the Mineral Laws Amendment Act, जो अमेंडमेंट है एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट, दैट केम इनटू बीइंग टू इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन कोल सेक्टर, बूस्ट कोल प्रोडक्शन इन इंडिया एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट ऑफ कोल. तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें एक मोटिवेशन किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नेसेसरी नहीं होगी. ये जो अभी तक नेसेसरी नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल, एक्सेप्ट इन सब केसेस, वो हम एक्सेप्ट पढ़ेंगे, बट नेसेसरी नहीं होगी. यह अमेंडमेंट हो गया है. नाउ व्हाट आर द अमेंडमेंट, जो मैंने बोला, जो मैं पॉइंट कह रहा था ना, प्रायर अप्रूवल. देखो दिस पॉइंट. सो दिस बिल प्रोवाइड्स दैट प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन ग्रांटिंग लाइसेंसेस फॉर कोल एंड लिग्नाइट इन सर्टेन केसेस. कुछ केसेस में अप्रूवल is not required. These include cases where the allocation has been done by the central government and the mining block has been reserved to conserve a mineral. So वहाँ पे अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑलरेडी परमिशन से ही एलोकेशन हुआ है. सो एलोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं होगी. यानी कि जो कोल ऑक्शन है, माइन ऑक्शन, वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नेसेसरी नहीं होगी फॉर माइनिंग ऑपरेशंस. केवल स्टेट गवर्नमेंट उसको की परमिशन से ही माइनिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं. सो अंडर द एमएमडीआर एक्ट स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ग्रांटिंग रिकॉग्निशंस परमिट, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर कोल एंड लिग्नाइट. ठीक है ना, कोल एंड लिग्नाइट की बात कर रहे हैं. नाउ रिमूवल ऑफ क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं, एंड यूज ऑफ कोल. एक तो पहले क्या था, पावर जनरेशन स्टील प्रोडक्शन के लिए हो सकता था, लेकिन द बिल रिमूव दिस रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ कोल माइन बाय सच कंपनी. जो कैप्टिव वाली बात थी वो खत्म कर दी गई है. एलिजिबिलिटी फॉर ऑक्शन, वही कोल माइनिंग एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है. प्रायर अप्रूवल की मैंने आपको बता दी कि प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट की अब जरूरत नहीं है स्टेट गवर्नमेंट्स को. कुछ केसेस में, किस केसेस में जरूरत नहीं है, जहाँ पे एलोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी. और एफडीआई 100% हो गया थ्रू ऑटोमेटिक रूट फॉर सेल ऑफ कोल माइनिंग एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एसोसिएटेड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे. तो प्रोसेस आप समझ लीजिए. जनरली जो ऑक्शन होता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है माइनिंग का. तो आप मोस्टली केसेस में समझ सकते हैं, क्योंकि एलोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करे है तो स्टेट गवर्नमेंट को अब परमिशन लेने की जरूरत नहीं है फॉर माइनिंग ऑफ कोल एंड लिग्नाइट. बाकी मेटलिक मिनरल्स या फिर एटॉमिक के लिए जरूरत होगी. अच्छा, इसका एडवांटेजेस क्या है? इट विल लेड टू द इंडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड कंपटीशन. ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर को हम दावा दे रहे हैं, तो वही कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी आएगी, कंपटीशन आएगी, रेवेन्यू मैक्सिमाइज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, फॉरेन फर्म्स आएंगी, इंपोर्ट रिड्यूस होगा. नोक ऑफ इम्पैक्ट. नोक ऑफ इम्पैक्ट कुछ नहीं है कि पहले क्या था कि कंपनीज को कोल ऑक्शन में पार्टिसिपेट करती थी कंपनी, तो क्योंकि वो अपने यूज के लिए कर सकती थी, दे कैन नॉट सेल ऑफ कोल. अभी क्या है कि अनलॉकिंग ऑफ द सेक्टर, कंपनीज यूजिंग कोल विल बी फ्री टू फोकस ऑन देयर कोर बिजनेस वाइल प्रोक्यूरिंग कोल फ्रॉम प्रोफेशनल माइनर्स. सो माइनिंग अब कोई और करेगा, वो तो प्रोक्यूर डायरेक्ट कर सकती है. अभी पहले कंपनी को खुद ही घुसना पड़ता था जिसको चाहिए था कोल. ठीक है ना. अभी कंपनीज किसी और से खरीद सकती हैं कोल. बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. Simple mines will no longer be allotted on the basis of a match with the needs of the single captive user. Rather, it will be auctioned based on economic efficiency. ठीक है ना. आप उनको ही ऑक्शन कीजिए जो आपको लगे कि एफिशिएंट कितने हैं. ऐसा नहीं है कि आपको उन्हीं कंपनीज को ही, कुछ ही पर्टिकुलर कंपनीज को ही देना है. तो आप जो आपको लगता है एफिशिएंट, उनको आप एलोकेशन कर सकते हैं. अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज, स्टेट गवर्नमेंट को बेनिफिट करेगा. The economies of coal bearing state like झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा will also grow. उनकी इकोनॉमी ग्रो करेगी since all the revenue from these auctions will accrue exclusively to them. तो ऑक्शन से जो रेवेन्यू होगा वो उनके पास जाएगा. बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, ऑक्शन स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है. तो जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऑक्शन करेगी तो अप्रूवल जरूरत नहीं होगी, बट स्टेट गवर्नमेंट भी ऑक्शन कर सकती है. वो डिपेंड करता है कि वो जो माइन है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ रही है. इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, अभी नेक्स्ट स्लाइड के बाद बताता हूँ.
So before explaining this slide to you all, मैं आपको ये बता दूं कि जो माइनिंग है, जैसे जिसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग कम माइनिंग ऑपरेशंस। सो प्रोस्पेक्टिंग होता है कि आपको सर्च करना है माइनिंग मिनरल्स के लिए, तो उसके लिए प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस मिलता है। और माइनिंग के लिए जो माइन मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल, उसके लिए माइनिंग लाइसेंस मिलता है। तो प्रोस्पेक्टिंग कम माइनिंग लाइसेंस के लिए गवर्नमेंट ने अभी जो अमेंडमेंट किया है उसमें कंपोजिट लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है। पहले अलग अलग लाइसेंस दिया जाता था, अभी एक कंपोजिट लाइसेंस दिया जा रहा है। और साथ में जो भी ये माइनिंग जो मैंने आपको बताया कि शेड्यूल 1 में जो मिनरल्स हैं उनके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए उनकी माइनिंग के लिए। स्टेट गवर्नमेंट ही ऑक्शन करेगी बट सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए पहले, जो कि अभी अमेंडमेंट करके उसको ख़त्म कर दिया गया है। ख़त्म नहीं किया गया है उसको, कुछ केसेस में उसको कुछ केसेस मतलब कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ज़रूरत नहीं है। सो वो केसेस मैंने आपको बताए कि स्टेट गवर्नमेंट ऑक्शन करेगी माइंस को, बट अप्रूवल जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही एलोकेट कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही अगर माइंस को एलोकेट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट को, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट को नहीं लेनी पड़ेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट करती है स्टेट गवर्नमेंट को कि इन माइंस का ऑक्शन कर दो, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी बिडर्स होंगे उनको स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से लाइसेंस दे सकती है ताकि वो अपना माइनिंग ऑपरेशन शुरू कर पाए। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। नाउ व्हाट आर द इश्यूज विद दिस एक्ट? फेडरल चैलेंजेस, जैसे आपने मे भी सुना होगा। फेडरल चैलेंजेस मतलब इन रिट पिटीशन टू द सुप्रीम कोर्ट, झारखंड ने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन है टू कमेंस कमर्शियल माइनिंग प्रोसेस फ्लाउड शेड्यूल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 5 को इसको वायलेट कर रहा है, विच रिफर्स टू द शेड्यूल एरियाज फॉलिंग अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कमर्शियल माइनिंग अलाउ कर सकती, क्योंकि ज़्यादातर जो कोल माइंस हैं जो भी हमारे देश में लोकेटेड, दे आर लोकेटेड इन द शेड्यूल्ड एरिया। एंड एज पर द शेड्यूल 5 जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं दे कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एक फेडरल इशू है, ये अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी ये इशू पेंडिंग है। देन सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, वही कि इट विल हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द ट्राइबल पॉपुलेशन एंड वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन द स्टेट। And weak investment appetite. The negative global investment climate prevailing due to COVID-19 is unlikely to fetch reasonable returns proportionate to the value of the scarce natural resource. की रिटर्न नहीं मिलेगा, प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाएगा। ठीक है, वनरेबल टू फॉरेन कंट्रोल हो जाएगा कोल का। कोविड पैंडेमिक लिक्विडिटी क्रंच विद द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज माइट मेक देम अनकम्पिटिटिव इन ऑक्शन प्रोसेस वेयर ग्लोबल प्लेयर्स विद ह्यूज रिसोर्सेज विल बी पार्टिसिपेटिंग, एंड इससे कंट्रोल उनके पास चला जाएगा हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है बट विच इज अ नेशनल रिसोर्स। देन एनवायरमेंटल चैलेंज, वन ऑफ द प्रपोज ऑक्शन ऑफ ए माइन साइट इज नियर महाराष्ट्र अंधेरी तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। इसके पास कह रहे हैं कि वहाँ पे एक माइन एलोकेट के लिए ऑक्शन के लिए प्रोविजन है। द स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि माइनिंग एट दैट साइट कैन लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। तो काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं इन सबको लेकर, जो अभी इशू है जो कि एड्रेस गवर्नमेंट को करना भी बाकी है। तो ये आपको पता होने चाहिए क्या क्या अमेंडमेंट में इश्यूज हैं, क्या उसके एडवांटेजेस हैं और क्या अमेंडमेंट हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंपोजिट लाइसेंस हो गया है और 90 to 30 डेज हो गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की नेसेसिटी कम कर दी गई है कुछ केसेस में। FDI 100% FDI थ्रू ऑटोमेटिक रूट हो गया है। ठीक है, ऐसे कुछ इन्होंने प्रोविजंस की हैं। वही कैप्टिव एलोकेशन खत्म कर दिया है, कैप्टिव कंजम्पशन कमर्शियल कर दिया है। ठीक है ना, ये सब कुछ अमेंडमेंट में हुआ है। तो ये है कोल सेक्टर के ऊपर मेरा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में आपके ऊपर कोई पॉलिटी का टॉपिक लेकर मैं GS2 के ऊपर कुछ लेक्चर दूंगा। विद इन 2 to 3 डेज में लेकर आऊँगा आपके पास लेक्चर। अभी ये रेगुलर रखूँगा मैं लेक्चर्स अपने। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। और काइंडली अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली से लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।